Hello guys, this is Dr. Anshul Bansal joining you on the Unacademy platform. I'm here to teach you and guide you through orthopedics and its weightage and its importance in the NEET PG and various examinations related to this. Here, not only we'll cover NEET PG, we'll also cover all the professional examinations. We'll make you prepare for all the professional examinations in your MBBS as well as FMG graduates, USMLE graduates, INI CET graduate, aspirants, and everybody. So currently, I'm working as an orthopedic house surgeon in SMS Hospital Jaipur. I have done my MBBS from the same institute, that is SMS Medical College Jaipur. I have given this NEET PG exam in 2020 and cracked it with AIR 2300. So let's crack it together. I'm here to guide you for orthopedics. So before starting, I'll be telling you about our plans for NEET PG in at Unacademy. So at Unacademy, we have two types of plans. Wait. Yeah. Okay, fine. At NEET PG for NEET PG at Unacademy, we have two types of subscription plan. One is the Plus subscription, and the second is Iconic subscription. This is the Plus. In Plus subscription, you will get daily live classes. Okay, very interactive live classes with live quizzes and live tests, live classroom like feeling you'll get, with structured courses, structures to complete your course at the right time, and full strategy based videos. And you will get unlimited access anytime anywhere with notes as well as videos of various tutors. Okay, you'll get access to all 19 subjects. We have tutors for all, educators for all 19 subjects. Okay, now the second part is the second one is Iconic subscription. In Iconic subscription, you will get an academy plus prep letter and all the benefits of the prep letter, like the video lectures, Q bank, rapid revision courses, etc. And an academy other, you'll get live classes and batch courses with our esteemed faculty, as well as there will be personal care for every learner here with live tests and quizzes. And हर बच्चे का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे होगा उसका पर्सनल टेस्ट एंड क्विजेस पे का जो भी होगा पर्सनल, यू विल गेट अ फीडबैक. Okay, now we have started courses for NEET PG 21, and for all these plus or Iconic, and for these you can use this referral code ANSHULB10 for additional 10% discount. So for NEET PG we have already started with integrated clinical batches, and we have a professional 3-year exam for professional students who are giving the MBBS exams. And we have a focus FMG badge also, which will focus for FMG exam. Okay, in all these you can use this code. Now we have a limited time period offer. If you buy for 12 months right now, you'll get a 2 months extra. So it will be 14 months and 10% extra off if you use this code. And there's limited time period offer for Iconic subscription also. For 3 years, earlier it used to be 92,000, but in this offer you'll get it only for 58,500 and extra 10% off if you will use this code. Okay, now these are various plans, and as you can see, जैसे जैसे आप months increase करते जाओगे वैसे वैसे per month cost जो होगी वो कम होती जाएगी. So please guys, go ahead with this. We have faculty for all 19 subjects. So okay, let's start with this lecture. Fracture and its type with eponyms. Okay, what is fracture? As we have discussed, fracture is a break in continuity of the bone, and it has classified on the basis of various factors which we have discussed in a live class yesterday. Okay, now we'll discuss fracture with eponyms. मतलब कुछ अजीबो गरीब से नाम है जैसा बोले, and these names, the question comes with the name of these fractures. सिर्फ नाम मिलेंगे and you have to identify the fractures and questions related to these. And these are very important. I'll discuss around 30 or 35 fractures in this lecture, and
आप मान के चलो, आप कोई सा भी एग्जाम दो, यू विल गेट एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चन फ्रॉम these next slides. Okay, so first we'll come to Montage. So first we'll see the x-rays and its images, then we'll come to the theory part. Okay, so that आपका revision हो जाएगा. So first of all, this is Monteggia fracture. So what is this? This is upper limb, this is forearm, this is our elbow joint, this is ulna. Okay, this is radius, this is carpal, these are metacarpals, this is ulnar, sorry, radial head, this is the distal end of the radius, this is distal end of the ulna, this is ulnar styloid, this is radial styloid, and here uh, elbow joint is formed. This is the distal end of the humerus, distal end of the ulna, and this is the olecranon. So what is Monteggia fracture? Monteggia fracture में दो चीज होती है. Okay, पहली चीज होती है प्रॉक्सिमल 1/3. दिस इज प्रॉक्सिमल, कल मैंने सब समझाया. प्रॉक्सिमल मींस पास, डिस्टल मींस दूर. तो प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ द अल्ना का जो फ्रैक्चर होता है विथ डिसलोकेशन ऑफ द रेडियस हेड. ठीक है, रेडियस हेड का डिसलोकेशन भी है. वी सी नॉर्मल एक्सरे कहीं मिले तो ओके, we'll have a class separate for normal x-rays also. So anterior dislocation or ventral dislocation of the radius head with proximal 1/3 of the ulna, it is Monteggia fracture. ठीक है, इमेज याद दिमाग में फोटोजेनिक मेमोरी के फॉर्म में रखो, you will not get confused. Now there are two types of fractures and very common, very repeated. These are Colles and Smith fracture. Both fractures are of the distal end of the ulna. ठीक है, दोनों फ्रैक्चर ही डिस्टल एंड ऑफ द अल्ना के होते हैं. बस कोलीज फ्रैक्चर में क्या होता है, ये डिस्टल एंड, सॉरी डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस, सॉरी डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस के फ्रैक्चर होता है. यार इट इज द डिस्टल एंड ऑफ द एंड रेडियस फ्रैक्चर, इट इज कोलीज फ्रैक्चर. in this fractured segment ना, first of all it will be not intra-articular, मतलब joint में fracture line नहीं जाएगी. प्लस इसका जो tilt होगा, जो displacement होगा, that will be dorsally. Okay, this is ventral and this is dorsal. Okay, here at the thumb side I'll have radius, at the little finger side I'll have ulna. So here distal and radius होगा, उसका fracture segments फ्रैक्चर होगा, नॉन इंट्रा आर्टिकुलर होगा. एंड इफ द फ्रैक्चर सेगमेंट शिफ्ट्स पीछे की तरफ यानी पोस्टीरियरली और डॉर्सली, इट इज कोलीज फ्रैक्चर. एंड जस्ट ऑपोजिट ऑफ इट विल बी दिस स्मिथ फ्रैक्चर, जिसमें this thing will get displaced anteriorly or ventrally. Okay, now another, yes, you can see here it is Colles fracture outwards means, ठीक है, and it is inwards होगा. तो ये वाला जो फ्रैक्चर सेगमेंट है ये yes, you can see here again also. Okay. Now we come to another, that is Galeazzi fracture. ठीक है, Galeazzi fracture जो होता है, it is again of the distal 1/3 of radius as well as ulna. तो इसमें क्या होता है, फ्रैक्चर होता है distal 1/3 of the radius, distal radius not, है ना, plus there is fracture of the distal end of the ulna also. and इसमें ये जो ग्रोथ प्लेट होती है, द मेटाफाइसिस और द एपिफाइजल प्लेट, जहाँ पे ये एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस कनेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल वहां से फ्रैक्चर होगा. प्लस there will be fracture of the distal end of the radius also. And mind you, there will be no dislocation of the distal radioulnar joint. ये important चीज है, ये ध्यान रखना. तो distal radioulnar joint का dislocation किसके अंदर होगा, ये होगा Barton's fracture के अंदर. ठीक है, it will be intra-articular first of all. there will, है ना, first of all, है ना, ये important है. इसका पूरा नाम जो है, that is Voller Barton fracture. And remember one thing, anterior or ventral in orthopedics in upper limb is also called as the volar side.
ठीक है, इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वोलर साइड। तो वोलर बाटन, एज द नेम सजेस्ट, वोलर बाटन में क्या होगा, वोलर बाटन में जो डिस्टल वन थर्ड ऑफ द रेडियस का जो फ्रैक्चर है, डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस का जो फ्रैक्चर है, ये वोलर साइड में यानी एंटीरियरली जाएगा, एज यू कैन सी। प्लस इट विल बी इंट्रा आर्टिकुलर, there will be dislocation of the radio-ulnar joint, obviously किसका, distal radio-ulnar joint का dislocation होगा, and volar होगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, now another is Schoffer's fracture। Schoffer's fracture, as you can see in the image, it is radius, this is ulna, this is styloid process of the ulna, this is styloid process of the radius, and fracture of the styloid process of the radius is called as Schoffer's fracture। And obviously styloid process इतना चिप जैसा पार्ट है, तो obviously it will be intra-articular also। okay, ये भी intra-articular होगा। नाउ बॉक्सर्स फ्रैक्चर, बॉक्सर्स फ्रैक्चर एज द नेम सजेस्ट, और इतना तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बॉक्सर्स के अंदर होगा, और कहाँ पे होगा, वो मेटा कार्पल्स में होगा। बट ये तो एग्जामिनर को भी पता है कि आपको ये पता होगा, सो वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा कौन सी मेटाकार्पल में होगा। सो ये होगा आपके फिफ्थ मेटाकार्पल में। देखो, हमेशा काउंटिंग जो होती है वो थंब से स्टार्ट होती है, बी इट इन अपर लिम और बी इट इन द लोअर लिम। लोअर लिम में भी फर्स्ट विल बी थंब साइड, एंड अपर लिम में भी फर्स्ट विल बी थंब साइड। बस फर्स्ट थंब साइड जो होता है लोअर लिम में, दैट विल बी मीडियली, है ना, मीडियल से स्टार्ट करना है लोअर लिम में। एंड अपर लिम में ऑब्वियसली बात है, थंब लेटरल हो गया तो इसमें लेटरली स्टार्ट करना है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो जो आपका फिफ्थ मेटाकार्पल का जो हेड होगा, ओके, सो सी, ये मेटाकार्पल होता है, ये इसका हेड होता है, यहाँ पे इसका नेक होता है, ये पूरा शाफ्ट होता है, एंड दिस इज द बेस विच इन articulates with the carpal bones, and the head articulates with the phalanges, and it forms the metacarpophalangeal joint, okay, and it forms the carpometacarpal joint। ठीक है, सो ये जो हेड का जो फ्रैक्चर होता है, फिफ्थ मेटाकार्पल हेड, सॉरी फॉर माय राइटिंग, फिफ्थ मेटाकार्पल हेड, एंड ये भी वोलर डिस्प्लेसमेंट यानी वेंट्रल और एंटीरियरली डिस्प्लेस्ड होगा। ओके, दिस इज कॉल्ड एज बॉक्सर्स फ्रैक्चर। तो अब अपन इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। ओके, मोंटेजिया फ्रैक्चर, सब याद करो अपने मन में, मोंटेजिया फ्रैक्चर क्या होता था। मोंटेजिया फ्रैक्चर होता था प्रॉक्सिमल वन थर्ड ऑफ द अल्ना विथ डिसलोकेशन ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस। और कौन सा वाला डिसलोकेशन, एंटीरियर। व्हाट इज गैलेजी फ्रैक्चर, गैलेजी फ्रैक्चर इज डिस्टल वन थर्ड ऑफ द रेडियस का फ्रैक्चर होता है विथ डिसलोकेशन ऑफ द डिस्टल रेडियो जॉइंट। ओके, कोलीज फ्रैक्चर एडल्ट्स में होता है, कॉर्टिको कैंसलस जंक्शन पे होगा। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अपन ने पिक्चर में भी देखा, कॉर्टिको कैंसलस जंक्शन ही बोलेंगे उसको। और इसके अंदर क्या होगा, डोर्सल टिल्ट होगा, यानी पोस्टीरियर टिल्ट होगा। ठीक है, हाँ, एक फ्रैक्चर जिसकी फोटो इसमें नहीं थी, दैट वाज नाइट स्टिक फ्रैक्चर, बिकॉज ये मैं आपको क्वेश्चन में दूंगा। सो ठीक है, हर चीज की फोटो नहीं दिखाऊंगा, कुछ चीज आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिलेगी। सो नाइट स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है, नाइट स्टिक फ्रैक्चर आइसोलेटेड फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द अल्ना। ठीक है, और ये नाइट स्टिक फ्रैक्चर कैसे जनरली क्यों होता है, किसी ने यहाँ पे लट से मार दी या किसी स्टिक से मार दी, तो ये होता है, इट इज ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना। ओके, सी, दिस इज शाफ्ट ऑफ अल्ना। ठीक है, जो बीच का वन थर्ड पार्ट मान लो या बीच का हाफ पार्ट मान लो, दैट इज शाफ्ट। ओके, सो या स्मिथ उल्टा ऑफ कोलीज, कोलीज का उल्टा, तो कोलीज का उल्टा क्या होगा, कोलीज का उल्टा होता है, वे ये कहाँ गया, हाँ ये रहा, कोलीज का उल्टा होता है कि एडल्ट्स में होगा, कॉर्टिको कैंसलस जंक्शन में होगा, डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस में होगा। बस टिल्ट कहाँ हो जाएगा, टिल्ट विल बी ऑन द वोलर साइड, वेंट्रल टिल्ट। ठीक है, बार्टन फ्रैक्चर जिसको और क्या बोला जाता है, वोलर बार्टन भी बोला जाता है, या मार्जिनल फ्रैक्चर भी होता है। इसमें तीन चीजें मैंने बताई थी, क्या होगा,
इंट्राआर्टिकुलर होगा, रेडियो अल्ना जॉइंट का डिसलोकेशन होगा, एंड वोलर बॉटम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वोलर टिल्ट होगा, ठीक है। टेकिंग अ मार्जिन distal with the carpals, okay, the distal end with the carpals, ठीक है, ये पढ़ लो because I think it will come in exam in NEET PG is okay, polar button is important. Now Schoffer fracture as we have discussed earlier, इंट्राआर्टिकुलर होगा क्यों, क्योंकि ये स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस का होता है, ठीक है, तो इंट्राआर्टिकुलर हो गई ऑब्वियस सी बात है, ओब्लिक होता है। नाउ बॉक्सर्स फ्रैक्चर अपन ने डिस्कस कर लिया, वेंट्रली डिस्प्लेस फ्रैक्चर होता है, सॉरी नेक का होता है, नेक और हेड इसमें कंफ्यूजन है, कुछ लिटरेचर बोलती है हेड का होता है एंड कुछ लिटरेचर बोलती है नेक का होता है, बट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर दोनों ऑप्शन में आए यू शुड गो फॉर नेक, यू शुड गो फॉर नेक। नाउ नेक्स्ट इज स्वाइप, साइड स्वाइप, ओके वही सेम प्रोसीजर अपन यूज करेंगे, फर्स्ट वील सी द इमेजेस, ओके साइड स्वाइप फ्रैक्चर। अब सबसे पहले बताओ ये है क्या, सबसे पहले दिस इज ulna, दिस इज सॉरी दिस इज रेडियस, रेडियल हेड एट द एल्बो जॉइंट, एंड दिस इज ulna with fractured and avulsion of this part of the ulna, and what is this part, this is olecranon, ठीक है। it is an elbow injury sustained when one's elbow is side swept projecting out, ठीक, जैसे आप खड़े हो और साथ में आपको पीछे से कोई व्हीकल वाला आके ऐसे टक्कर मार के चला गया, ओके दिस वे, सो जो ओलिक्रोनॉन वाला पार्ट होगा वो आपके क्या होगा, टूट जाएगा या वल्स हो जाएगा विथ फ्रैक्चर, और एल्बो इंजरी तो एल्बो में क्या होता है, अल्ना है, तो ह्यूमरस कैसे पीछे रह सकती है, ओके, सो डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस जो होगा उसका भी फ्रैक्चर होगा विथ प्रॉक्सिमल एंड्स ऑफ रेडियस एंड और अल्ना, ठीक है। इसको और अलग अलग नाम से जाना जाता है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दीज नेम्स, दीज आर बेबी कार फ्रैक्चर, और ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेबी कार फ्रैक्चर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेबी कार फ्रैक्चर, ठीक है। नाउ एंकल पे आते हैं अपन, एंकल में तीन चार तरह के फ्रैक्चर है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, इन पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब दिस इज नॉर्मल, ये कौन सा व्यू है, दिस इज एपी व्यू, ठीक है, दिस इज एपी व्यू। अब ये दिस इज फिबुला डिस्टल एंड, दिस इज डिस्टल एंड ऑफ टिबिया, एंड दिस इज योर टार्सल, ठीक है। This end makes the medial condyle of your ankle, and this part forms the lateral condyle of your ankle, and इसके पीछे 3D में आप जाओगे तो आगे तो ऐसा है, and जब आप posteriorly जाओगे एक्सरे में बताऊंगा, it is like this, and that forms your third condyle which is called as posterior, third posterior, ठीक है। इसको medial condyle या medial malleoli, better word will be medial malleoli, दिस इज लेटरल मेल्यूलाई एंड दिस इज पोस्टीरियर मेल्यूलाई, जो पीछे की तरफ होता है। अगर सिर्फ नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, बायमेल्युलर एंड ट्राइमेल्युलर। बायमेल्युलर दो मेल्यूलाई जाएंगे कोई से भी, तो इट इज बायमेल्युलर एंड इट इज पॉट्स फ्रैक्चर। ट्राइमेल्युलर तीनों मेल्यूलाई जाएंगे, इट इज कॉल्ड कॉटन्स फ्रैक्चर, ठीक है। और एक फ्रैक्चर और होता है लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया का, उसको बोलते हैं बम्पर फ्रैक्चर, ठीक है। सो हाँ ये देखो, ये फोटो देखो, दिस इज एज दिस इज टिबिया, दिस इज medial malleoli, this is lateral malleoli, and as I have seen, देखो, this is metatarsal talus, this is calcaneum, and here it is tibia, उसके उधर फिबुला है, और ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है, यानी पोस्टीरियर मेल्यूलाई भी टूटा हुआ है, तीनों मेल्यूलाई टूटे हुए हैं, इट इज कॉल्ड एज कॉटन्स फ्रैक्चर, ओके समझ आया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कॉटन्स फ्रैक्चर, पढ़ते हैं, ठीक है। पॉट्स फ्रैक्चर बायमेल्युलर, कॉटन्स फ्रैक्चर ट्राइमेल्युलर, ठीक है।
नाउ एक फ्रैक्चर होता है मेसोनी फ्रैक्चर, ठीक है, तो अपन ये पढ़ते हैं। व्हाट इज मेसोनी फ्रैक्चर? मेसनीज फ्रैक्चर ये होता है जो फिबुला की जो नेक होती है, नेक ऑफ द फिबुला, दिस इज फिबुला, फिबुला की नेक का जो फ्रैक्चर होता है उसको बोला जाता है मेसोनीज फ्रैक्चर, ठीक है। या फिर लेटरल मेलियोलाई फ्रैक्चर जो होगा उसको भी बोल सकते हो आप मेसोनी फ्रैक्चर एट द लेवल ऑफ नेक, ठीक है। ना व्हाट इज पिलिन फ्रैक्चर? पिलिन फ्रैक्चर भी एक एंकल का फ्रैक्चर होता है जो इंट्रा आर्टिकुलर होता है एंड इट इज वेरी हार्ड टू ट्रीट, मतलब इंट्रा आर्टिकुलर, कोई भी इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर होता है जो जॉइंट स्पेस को इन्वॉल्व करता है वो हमेशा डिफिकल्ट होता है ट्रीट करने को। क्यों? क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कैलस फॉर्मेशन होता है, तो अगर उसको आपने ढंग से रिड्यूस करके, और अच्छे से सर्जरी तो करनी ही पड़ती है, रिड्यूस करके अच्छे से नहीं किया तो एक्चुअली कैलस एंड ऑल बन के यहाँ पे जो जॉइंट स्पेस होती है ये इन्वॉल्व होके यहाँ पे आर्थराइटिक चेंजेस हो जाते हैं एंड दीज आर पेनफुल लाइफ लॉन्ग, दीज आर पेनफुल लाइफ लॉन्ग ना, सो इसलिए these are very hard to treat. Okay, so what is pillar fracture? Pinal fracture is a intra-articular fracture of the distal end of the labia, ठीक है। और ये जो होता है ये कैसा होता है? कम्यूटेटेड, एज यू कैन सी कम्यूटेटेड कल अपन ने पढ़ा था। व्हाट इज कम्यूटेटेड? कम्यूटेटेड इज छोटे छोटे टुकड़े हो जाना, बहुत सारे, ठीक है, इट इज कम्यूटेड फ्रैक्चर, ठीक है, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन जाना, इट इज कम्यूटेड फ्रैक्चर। ओके, जोन्स फ्रैक्चर। अब चलो सबसे पहले बताओ ये है क्या? इट इज फुट, एक्सरे ऑफ फुट, ठीक है। एंड एक्सरे ऑफ फुट में दीज आर 5 metatarsals, this is the छोटी वाली finger, fifth metatarsal, these are our tarsals, this is cuneiform, lateral cuneiform, intermediate medial cuneiform, below this there will be navicular, okay, ये सब पढ़ेंगे अपन, ओके। तो ये जो चीजें हैं these are, तो its head, neck, shaft, base of metatarsal, fifth metatarsal के base का जो fracture होता है it is called as Jones fracture, ठीक है, it is called as Jones fracture, it is called as Jones fracture, let us see this. Yeah, it is avulsion fracture of the base of the fifth metatarsal, okay, and यही ऐसा ही फ्रैक्चर अगर बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल का हो जाए, बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल, अपन देखा था नेक ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल का फ्रैक्चर वाज सल्स, एंड बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल का फ्रैक्चर और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर होगा, है ना, इट विल बी रोनाल्डो फ्रैक्चर। क्या होगा? ये होगा रोनाल्डो फ्रैक्चर, ये होगा रोनाल्डो फ्रैक्चर, ओके। नाउ जेफरसन फ्रैक्चर जो होता है, ये सब फ्रैक्चर जो है ये है वर्टिब्रल कॉलम के दोनों फ्रैक्चर्स, ठीक है। एक यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द नेम विप्लैश इंजरी एंड कंकशन, ना, पढ़ते हैं अपन व्हाट इज विप्लैश, व्हाट इज कंकशन। कंकशन तो क्या होता है? कंकशन कोई भी एक्सीडेंट हुआ, कोई भी आरटीआई हुआ, कोई भी फॉल फ्रॉम हाइट हुई, कुछ भी हुआ, देयर इज डिसोरिएंटेशन या थोड़ा सा मोमेंटली बेहोश हो जाना, ठीक है, एंड हेडेक रहना काफी देर तक, दैट इज कंकशन ड्यू टू spinal injury, but there is no gross injury visible in CT, ठीक है, एंड इट इज कंजर्वेटिव, अपने आप ठीक हो जाता है थोड़े टाइम में। एंड व्हाट इज विप्लैश? विप्लैश क्या होता है? सडन फ्लेक्शन, जैसे मान लो यू आर सिटिंग इन अ कार एंड एकदम से ब्रेक लगाया तो अपना जो मोमेंटम है दैट इज आगे की तरफ, एकदम ब्रेक लगाया तो व्हील आगे, एंड नेक जो होगी वो ऐसे यूं फ्लेक्स हो जाएगी, है ना, एंड फ्लेक्स होगी और गाड़ी रुकी हुई है तो ऑब्वियसली बात है देन इट गोज इनटू द हाइपर एक्सटेंशन, सो फ्लेक्शन फॉलोड बाय हाइपर एक्सटेंशन की वजह से जो नेक रीजन के यहाँ पे जो सर्वाइकल वर्टिब्रीज होती है, सर्वाइकल स्पाइन होती है, उसमें जो इंजरी होती है दैट इज कॉल्ड एज द विप्लैश इंजरी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द विप्लैश इंजरी, ठीक है। एंड सर्वाइकल रीजन में ही जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा का जो फ्रैक्चर होता है उसको बोला जाता है जेफरसन फ्रैक्चर। फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है,
ठीक है। उसका नाम होता है एटलस। ठीक है, ये सब अपन पढ़ेंगे अच्छे से। एंड बहुत कंफ्यूजन वाली चीज़ है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। एंड आई ऑल्सो टीच यू हाउ टू आइडेंटिफाई विच वर्टिब्री इज विच विद द हेल्प ऑफ सीटी एंड एमआरआई, कि कैसे काउंटिंग करते हैं वर्टिब्रा की। ठीक है। So I'll also teach, stay tuned. So fracture of the first cervical vertebrae is called as the Jefferson fracture. ठीक है। See, this is the first vertebrae. ठीक है, ये रहा। Here it is the fracture. This is the body part. These are the spinous processes. This is the pedicle. We'll all discuss this. Okay, no worries. Now this is मार्च फ्रैक्चर। एक मार्च फ्रैक्चर मैंने कल लाइव सेशन में शायद डिस्कस किया था, एक बार नाम लिया था। कैन एनीबडी गेस कौन से टाइप का फ्रैक्चर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेस फ्रैक्चर ड्यू टू रिपीटेटिव क्रॉनिक ट्रॉमा, पेनफुल, नॉट इजीली डिटेक्टेबल एट एक्सरे। देखो एक्सरे को इतना जूम कर रखा है, देन ऑल्सो इतना छोटा सा एक फ्रैक्चर दिख रहा है। ठीक है। So it is called as march fracture at metatarsal of the foot। ठीक है, मार्चिंग करते टाइम सोल्जर्स एंड ऑल में थोड़ा कॉमन होता है। ठीक है। या कहाँ गया? या मार्च फ्रैक्चर सेकेंड और थर्ड मेटाटार्सल का होगा। ये किसका होगा? सेकेंड और थर्ड मेटाटार्सल का। ठीक है। नाउ विल कम टू फ्रैक्चर ऑफ स्पाइन। एक अपन पढ़ेंगे चांस फ्रैक्चर, देन विल गो टू बर्स्ट फ्रैक्चर एंड अदर थिंग्स। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था। व्हाट इज चांस फ्रैक्चर? चांस फ्रैक्चर का एक अलग बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और वो नाम है सीट बेल्ट। इसमें क्या होता है, जो बॉडी और वर्टिब्रा का फ्रैक्चर होता है, थ्रू एंड थ्रू होता है, बायोकॉर्टिकल होता है। प्लस क्या होगा कि इसके अंदर यू विल गेट दिस थिंग, जो फ्रैक्चर लाइन होगी वो बॉडी के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल थ्रू एंड थ्रू होगी। दिस इज चांस फ्रैक्चर। और एक होता है बर्स्ट फ्रैक्चर। बर्स्ट फ्रैक्चर में क्या होगा, एक सिंगल लाइन नहीं होगी, इट विल बी लाइक बर्स्ट कंप्रेशन, ऐसे फट, किसी भी चीज को आप ऐसे बर्स्ट करते हुए चिप्स के पैकेट को भी, तो वो हो जाता है। अब एक मैं आपको चीज बताता हूँ कि किसी भी फ्रैक्चर को ट्रीट करना है या नहीं करना है, इट ऑल डिपेंड्स हियर। यू हैव टू सी कि यहाँ पे कोई कंप्रेशन तो नहीं आ रहा पोस्टीरियर कॉलम में। दीज आर द प्रोसेसेस। सो इट इज द इंडिकेशन कि आपको उसको एग्रेसिवली थ्रू सर्जरी करना है या नहीं करना है। ओके, सो बर्स्ट फ्रैक्चर स्पाइन का फ्रैक्चर होता है। ठीक है, और नाम से आप समझ जाओगे। और बर्स्ट होगा बिखर जाएगा, बिखर जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, और टुकड़े नाम आते ही आपको याद आना चाहिए कम्यूटेड फ्रैक्चर। ठीक है। ओके, नाउ क्ले शोवेलर फ्रैक्चर, ये काफी बार आ चुका है ना? सो नाम से यू हैव टू लर्न इट। ठीक है। क्या होता है, अवल्जन फ्रैक्चर होता है सर्वाइकल रीजन में, या कई बार थोरेसिक रीजन में भी होता है, बस बेसिकली सर्वाइकल रीजन में मोर कॉमन होता है। और अवल्जन फ्रैक्चर होता है स्पाइनस प्रोसेस का। अपन ने देखा था, देखो ये जो है ये स्पाइनस प्रोसेस है, जो ये ऐसी सर्वाइकल रीजन में ये स्पाइनस प्रोसेस है, तो स्पाइनल प्रोसेस का सर्वाइकल रीजन का फ्रैक्चर इज क्ले शोवेलर फ्रैक्चर। एंड कभी कभार ये अपर थोरेसिक वर्टिब्री में भी आ सकता है। ठीक है। ओ, ना एक हैंगमैन फ्रैक्चर होता है, जो अपने हैंगिंग के टाइम पे, डेथ पनिशमेंट के टाइम पे जो अपन देते हैं, उसमें जो फ्रैक्चर होता है डेट इज कॉल्ड हैंगमैन फ्रैक्चर। एंड ये जो होता है, आपको जो याद रखनी है वो रखना है, C2 का फ्रैक्चर होता है, एंड C2 एंड C3 का सबलक्सेशन हो जाता है। एंड C1 के फ्रैक्चर को क्या बोल देते हैं? डज एनीवन रिमेम्बर? क्या बोलते थे C1 के फ्रैक्चर?
अब याद आया, इट इज कॉल्ड एज जेफरसन फ्रैक्चर। C2 अगर हैंगिंग के टाइम पे है, इट इज कॉल्ड एज हैंगमैन फ्रैक्चर। एंड स्पाइनस प्रोसेस्ड क्लेश ओवरलैप। ठीक है, ये दोनों एसिटाबुलम के फ्रैक्चर्स है। उससे पहले वील डिस्कस अबाउट द मैलेट फिंगर। मैलेट फिंगर जो होता है, फिंगर की और भी डिफॉर्मिटीज होती है, दैट विल डिस्कस, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज मैलेट फिंगर। फिंगर जो होती है वो DIP जॉइंट पे फ्लेक्स होती है। व्हाट इज DIP? इंटरफेरेंजियल इज IP, डी इज डिस्टल। डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, डी दूर जा रहे हैं। तो इसका जो फ्लेक्शन जो होता है, फिंगर फ्लेक्स रह जाती है, ठीक है, ये ऐसे हो नहीं पाती है, ठीक है, एंड इट इज़ वेरी पेनफुल। तो ऑब्वियस सी बात है, एक बात बताओ, फिंगर अगर फ्लेक्स से फिंगर एक्सटेंड नहीं हो पा रही है, तो क्यों नहीं हो पा रही होगी? क्योंकि एक्सटेंशन मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा, और एक्सटेंशन मैकेनिज्म जो होंगे इस साइड, वो ऑब्वियसली क्या होता है, रप्चर हो जाते हैं या अवल्ज हो जाते हैं या कोई इंजरी हो जाती है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? मैलेट फिंगर बोला जाता है। सी या हियर इट इज, ठीक है, PIP DIP एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा, दिस इज कॉल्ड मैलेट फिंगर। इसका मैलेट ब्रेस आता है अलग से, या दो फिंगर्स को जितना हो सके ऐसे कर दो या ऐसे करो, और फिर भी ठीक नहीं हो तो देन यू गो फॉर सर्जरी ऑल्सो। ओके, नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ एसिटाबुलम फ्रैक्चर। चलो सबसे पहले आई विल डिस्कस द नॉर्मल एनाटॉमी। ठीक है, चलो दिस साइड इज नॉर्मल, दिस इज स्पाइन, this is sacrum, this is coccyx, this is all pelvis, this is pubic symphysis, this is SPR, superior pubic rami, this is IPR, inferior pubic rami, superior pubic rami, this is femur, femur का head, फीमर का नेक यहाँ पे, दिस इज LT लेसर ट्रोकेंटर, वहाँ पे आपको दिखेगा ये रहा, दिस इज GT ग्रेटर ट्रोकेंटर, LT इसके बीच में फ्रैक्चर इज इंटर ट्रोकेंट्रिक IT फीमर। ठीक है, फ्रैक्चर। ओके, दिस पार्ट is called as the acetabulum, okay, which makes the hip joint, it is the pelvis। okay, now acetabulum के दो कॉलम्स होते हैं, वन इज द एंटीरियर कॉलम एंड वन इज द पोस्टीरियर कॉलम। तो एंटीरियर कॉलम कौन सा होता है? ये वाला जो कॉलम है ना, दिस इज कॉल्ड एंटीरियर कॉलम, ये वाला, एंड इट इज, एंड दिस इज योर पोस्टीरियर कॉलम, ये वाला था, ठीक है, एंड दिस इज दिस दिस इज योर पोस्टीरियर कॉलम। ठीक है, सो डैशबोर्ड फ्रैक्चर में क्या होता है, पोस्टीरियर कॉलम, पोस्टीरियर लिप ऑफ द एसिटाबुलम जो होता है, उसका जो फ्रैक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड एज डैशबोर्ड फ्रैक्चर। ठीक है, और पोस्टीरियर कॉलम में तो पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप भी होगा, साथ में हिप का जो हेड होता है वो अंदर घुस जाता है। एक्चुअली टुडे ओनली आई गॉट अ केस ऑफ ट्रॉमा विथ डैशबोर्ड फ्रैक्चर, अभी ये पढ़ाते टाइम याद आया, एंड दैट वाज अ क्लासिकल डैशबोर्ड फ्रैक्चर, एंड आई विल ट्राई टू शेयर दो CT एंड एक्सरे विद यू। ओके, आज सुबह ही आया है एक डैशबोर्ड फ्रैक्चर, वील ऑपरेट दैट। एंड व्हाट इज मेलगेगनी फ्रैक्चर? मेलगेगनी फ्रैक्चर जो होगा, उसमें क्या होगा, पेल्विस का फ्रैक्चर तो होगा लेकिन वो कोई एक अकेले एसिटाबुलम का फ्रैक्चर नहीं होगा, उसमें क्या होगा, आपके प्यूबिक रेमाई भी होंगे, ये देखो प्यूबिक रेमाई, ये डिसलोकेशन है प्यूबिक सिम्फाइसिस का, ठीक है, ये फ्रैक्चर है, प्यूबिक रेमाई होंगे, सेक्रम फ्रैक्चर होंगे, ठीक है, ऑन द सेम साइड। ठीक है, इसको बोलेंगे मैलगेगनी फ्रैक्चर, एंड डैशबोर्ड इज द पोस्टीरियर लिप ऑफ द एसिटाबुलम का जो फ्रैक्चर होगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन डैशबोर्ड फ्रैक्चर। फिर एक ये IPR SPR IPR SPR, अगर ये बायोलेटरल दोनों टूटे हुए, एक दो तीन चार फ्रैक्चर हो बायोलेटरल, तो उसका एक अलग नाम होता है, उसको बोला जाता है क्या, उसको बोलते हैं अपन स्ट्रैडल फ्रैक्चर। उसको क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं स्ट्रैडल फ्रैक्चर। ठीक है, ओके, मालगेगनी फ्रैक्चर। सो समझ आया ये
याद करते रहना, पढ़ते रहना। इनकी फोटोज कुछ भी नहीं है, एक बार गूगल करो, गूगल पे एक्सरे की फोटोज मिल जाएगी, उन फोटोज को फेवरेट्स में ऐड कर दो। दिन में एक बार खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इट विल ओनली टेक अराउंड 50 to 60 सेकेंड्स। एक बार उन एक्सरेज को देखते रहो, 10 बार 20 बार देख लिया तो आपको 30 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे एक्सरे देखने में, और ये आप कभी नहीं भूलोगे। सो ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज है, ये करते रहना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है। सो आज के सेशन इतना सही, छोटा सा सेशन था, इंफॉर्मेटिव हाई यील्डिंग सेशन था। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe on my YouTube account, and please subscribe, because it is free of cost, and if you will subscribe you will get entry to my special classes. Okay, I am scheduling a special class on Friday night, I guess. Yeah, Friday night I will be having a special class. Okay, so please subscribe on it. If you will subscribe, then only you will get entry to the special class. It is absolutely free, free, free. Okay, so please like, share and subscribe, hit the bell icon, go for the plus or iconic subscription using my promo code. Okay, thank you, stay safe and study. Okay, bye guys, bye.